بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی ایک علول انگیز تاریخی ناول، ایپیسوڈ نمبر 6۔ چنانچہ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہوئے۔ راجہ آنند پال نے انتہائی خونخوار اور جنگ کا وسیع تجربہ رکھنے والے کھوکھروں کو اپنے سامنے رکھا تھا، اور اس بار اسے یقین تھا کہ فتح مندی اور کامیابی اسی کی ہوگی۔ پھر اس کے کہنے پر کھوکھروں کا سالار نندی وردن اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دونوں لشکروں کے وسط میں آیا، اور پھر اس نے عبداللہ قراتگین کا نام لے کر پکارتے ہوئے انفرادی مقابلے کی دعوت دی۔ دوسری طرف سلطان کے لشکر کی تقسیم ہوئی تھی۔ پہلوان پر ارسلان اور عبداللہ تائی تھے۔ وسطی حصے میں سلطان کے ساتھ ایاز، عبداللہ قراتگین اور احمد نیالکین تھے۔ جب نندی وردن نے انفرادی مقابلے کے لیے پکارا، تب احمد نیالکین اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا: سلطان محترم، یہ جو دشمن کے جنگجو اور تیغ زن ہر بار عبداللہ قراتگین کا نام لے کر ہی انفرادی مقابلے کے لیے پکارتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہر بار عبداللہ کو نہیں نکالنا چاہیے، دوسرے سالاروں کو بھی انفرادی مقابلے میں دشمن سے تباہ آزمائی کرنی چاہیے۔ اس موقع پر عبداللہ بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور احمد نیالکین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: احمد میرے بھائی، تو مجھ سے بڑا ہے، میں تیری عزت تیرا احترام کرتا ہوں، مگر یہ بھی تو سوچو کہ اس سے پہلے انفرادی مقابلے میں ان کے دو سرما اور تیغ زن میرے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ اب وہ انتقام لینے کے لیے تمہیں یا عبداللہ تائی، ارسلان، جازب یا ایاز یا کسی دیگر سالار کو نہیں پکاریں گے۔ چونکہ مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہیں، لہٰذا میرا نام لے کر ہی انفرادی مقابلے کے لیے بلائیں گے، اس لیے کہ میں نے ہی ان سے پہلے ان کے ایک سرما راج کنور اور دوسرے سرما کوئی راج کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ احمد نیالکین، میں پھر میدان میں اترتا ہوں۔ میری تم سے استدعا ہے کہ سلطان کے پاس رہتے ہوئے میری کامیابی، میری فوج مندی کی دعا کرنا۔ میرا دل کہتا ہے کہ کامیاب میں ہی رہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سوالیہ سے انداز میں عبداللہ نے سلطان محمود غزنوی کی طرف دیکھا، جس پر سلطان نے اپنے سر کو اس بات میں ہلکی سی جنبش دی، جس کے جواب میں عبداللہ قراتگین مسکرایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر وہ وسطی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا قراتگین جب نندی وردن کے سامنے گیا، تب نندی وردن کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا: میرا نام نندی وردن ہے، پہلے یہ بتا کہ تو عبداللہ قراتگین ہی ہے، اور اس سے پہلے کوئی راج اور راجہ کنور کو انفرادی مقابلے میں تو نے ہی زیر کیا تھا؟ اس پر عبداللہ مسکرایا اور کہنے لگا: تیرا اندازہ بالکل درست ہے، کوئی راج اور راجہ کنور دونوں میرے ہاتھوں ہی موت کے گھاٹ اترے تھے۔ تو بس یوں جان، میں تم سے ان دونوں کا ہی انتقام لینے کے لیے میدان میں اترا ہوں۔ اس پر نندی وردن کہنے لگا تھا۔ عبداللہ قراتگین نے اپنے سامنے اپنی تلوار اور ڈھال لہرائی، پھر کہنے لگا: تیرا انتقام لینے کے لیے کون میدان میں اترے گا؟ نندی وردن نے کھا جانے والے انداز میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا: کسی فریب گھمنڈ میں مبتلا نہ رہنا، میں کھوکر ہوں، ذرا مقابلہ شروع ہونے دے، پھر دیکھ کہ میں تیرے ذوق و شوق کی بلندی کیسے پست کرتا ہوں۔ عبداللہ مسکرایا کہنے لگا: سن نندی وردن، اس سے پہلے کوئی راج اور راج کنور بھی تجھ جیسی ہی گفتگو کرتے تھے، اور وہ بھی مجھے ہجرتوں کے عذابوں، قہر مانند کے سلسلوں میں ڈبا دینے والے دعوے کرتے تھے، پر میں نے ان کی تمناؤں کو اور ان کی تمام باتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو اگر کھوکر ہے تو کیا ہوا؟ اس کے بعد عبداللہ نے اپنے چوڑے پھل کی تلوار نندی وردن کے سامنے کی اور کہنے لگا: نندی وردن، میری اس تلوار کی طرف غور سے دیکھ، اس میں تجھے اپنے لیے عذابوں کے سلسلے، مرگ کی سیل بے اما نظر آئیں گی۔ تو اپنے پہلے دو ساتھیوں کی طرح بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا ہے، پر یاد رکھنا، میں تیرے سامنے نہ بچہ ہوں نہ خام، مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے سنبھل کر رہنا۔ میری تلوار جب حرکت میں آئے گی، تجھ پر برسے گی، تو تیری فکر کی ساری اریانیاں سرابوں کے اندر فریب میں بدل کر رکھ دے گی۔ پھر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھایا اور پھر جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کیا۔ کچھ دیر تک دونوں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے۔ دونوں کے گھوڑے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے اپنے مالک کے لیے حملہ آور ہونے کی آسانیاں پیدا کر رہے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر ہلکا سا تبسم عبداللہ کے چہرے پر نمودار ہوا۔ شاید اس نے نندی وردن کے ساری ہنر مندی اور سنائی کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دائیں پاؤں کی مہیس اپنے گھوڑے کی پچھلی رار پر لگائی، جس پر گھوڑا ہنایا، ایک بار کنتایاں بدلے، نتھے پھڑپڑائے،
फिर नंदीवर्धन के घोड़े के बिल्कुल मुतवाजी हो गया था। इसके साथ ही अब्दुल्लाह ने भी बड़े हौलनाक अंदाज में नंदीवर्धन को मुखातिब किया। नंदीवर्धन, अब संभल कर रहना, मैं तेरी आत्मा की राख बिखरने लगा हूँ, तेरी जुर्रत और शुजाअत के चश्मे बंद करने लगा हूँ। अब्दुल्ला के अल्फाज से पहले ही नंदीवर्धन पर थकावट तारी हो गई थी। उसकी हालत बेहवा सहराओं की वसातों में कब्र की तंगी की मंजर जैसी हो गई थी। ऐन उसी लम्हे अब्दुल्ला ने एक अजीब कार्रवाई की इब्तिदा की। वो अपने घोड़े की दोनों रुकाबों पर खड़ा हो गया। अपने सामने उसने ढाल कर ली थी। उसके बाद उसने अजीब से हौसलों की ताजगी और बेबाकी पेशकदमी में हवा में उछलते हुए अपने दोनों पांव अपने घोड़े की जेब पर रख दिए थे। इसके साथ ही वक्त के गुमशुदा साहिलों में भटकती सरगर्दा मौजों की तरह फिजाओं में उछला और अपनी तलवार बुलंद करके जब उसने नंदीवर्धन पर गिराई, तब उसने तारीख की रफ्तार में किसाक के रस्क की तरह नंदीवर्धन को उस शाने से खूब नीचे तक काट कर रख दिया था। नंदीवर्धन ने एक खौफनाक चीख बुलंद की। उसके बाद वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया था। इस मौके पर अब्दुल्ला का घोड़ा बिल्कुल साकित हो गया, जरा सी भी जुम्बिश नहीं कर रहा था। शायद वो अपने मालिक को हमलावर होने की पूरी सहूलत फराहम कर रहा था। जो ही नंदीवर्धन लाश की सूरत में गिरा, अब्दुल्ला अपने घोड़े की जेब पर हुआ था। फिर उसने अपनी तलवार साफ करके नियाम में किया और नंदीवर्धन के घोड़े की बाग पकड़कर अपने लश्कर की तरफ जा रहा था। इस मौके पर अपने लश्कर के सामने खड़ा अनंतपाल बड़ा परेशान और फिक्रमंद हो रहा था। इसके साथ जो मुख्तलिफ राजाओं के सालार अपने सालार खड़े थे, उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान, मुसलमानों का ये सालार और तेगजन भी अजीब व गरीब है। पहले इसने कोई राज को मौत के घाट उतारा, फिर राज को नूर की गर्दन काटी। आज खोखरों के सालार आला नंदीवर्धन को जब मैंने मैदान में इनफरादी मुकाबले के लिए उतारा, तब मुझे उम्मीद थी कि नंदीवर्धन कोई राज और राजकुनूर का इंतकाम खूब लेगा और मुसलमानों के सालार अब्दुल्लाह करातगीन की गर्दन काटने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात यह कि इस अब्दुल्लाह करातगीन ने उस नंदीवर्धन को भी मौत के घाट उतार दिया। अनंतपाल की इस गुफ्तगू से सारे सालार परेशानी का इजहार कर रहे थे। फिर अनंतपाल ने जंग की इब्तिदा करने के लिए अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। जिस वक्त राजा अनंतपाल, उसकी इत्तेहादी और सालार अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे, हसीन और खूबसूरत कौशल देवी पिछली सफ़ों के पास अपने घोड़े को दाएं बाएं दौड़ाते हुए बड़ी परेशानी से अपनी बड़ी बहन हसीन काशी कुमारी को तलाश कर रही थी। अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वक्फे वक्फे से घोड़े को रोकती और जो भी सामने आता उससे काशी कुमारी का पूछती। जब कोई उसे कुछ न बताता, तब वो मजीद परेशान और फिक्रमंद हो जाती। आखिर अपने घोड़े को दौड़ाते हुए एक जगह कौशल देवी ने घोड़े की बागी खींचते हुए उसे रोक दिया, इसलिए कि सामने वो सालार आ गया था जिससे अनंतपाल ने लश्कर के एक हिस्से के साथ पड़ाव की हिफाजत पर मुकर्रर कर रखा था। कौशल देवी को परेशान और फिक्रमंद देखकर उसने जुस्तजू भरे अंदाज में पूछ लिया, कौशल देवी, मेरी बहन, क्या हुआ है? आप घोड़ों को क्यों इधर उधर दौड़ा रही है? इस पर कौशल देवी परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगी, मैं और मेरी बड़ी बहन काशी कुमारी दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने लश्कर का जायजा लेने के लिए साथ साथ दुश्मन के लश्कर पर निगाह भी रखे हुए थे। दरअसल ऐसा हमने इनफरादी मुकाबला देखने के लिए किया था। इनफरादी मुकाबला जिस वक्त हो रहा था, उस वक्त हम दोनों बहनें इकट्ठी थी। जिस वक्त मेरी निगाहें पूरी तरह इनफरादी मुकाबला करने वाले सुरमाओं पर जमी हुई थी, उस वक्त न जाने काशी कुमारी कैसे बड़ी राजदारी से अपने घोड़े को वहां से हटाकर किसी और से चली गई। अब मैं काफी देर से उसे तलाश कर रही हूँ। न वो पड़ाव में है, न अपने खीमे के अंदर, न लश्कर में कहीं मौजूद है। इसकी इसी गैर मौजूदगी ने मुझे परेशान और फिक्रमंद कर दिया है। यहाँ तक कहने के बाद कौशल कुमारी रुकी। तब वो सालार बड़ी हमदर्दी में कहने लगा, राजकुमारी, आप पड़ाव में अपने खीमे के अंदर चली जाए। ये भी मुमकिन है कि अब तक राजकुमारी अपने खीमे में आ गई हो। अगर ना भी आई हो तो मैं खुद उसका पता करता हूँ, तलाश करता हूँ। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा कि आप इंतहाई परेशानी में उसे तलाश करती फिर रही है, लिहाजा उन्हें खीमे के अंदर भेज दूंगा। आप परेशान ना हो, आप मुतमईन होकर जाए, मैं बड़ी राजकुमारी को तलाश करता हूँ। इस सालार के इस अल्फाज पर कौशल देवी किस कदर मुतमईन और आसूदा हो गई थी। फिर उसने घोड़े की बागें मोड़ते हुए उसी एड़ लगाई, फिर अपने खीमे की तरफ जा रही थी। दोनों लश्करों ने जब अपनी सफ़ें दुरुस्त कर ली, तब हमले की इब्तिदा राजा अनंतपाल, उसके हवारियों, हिमायतियों, इत्तेहादियों ने की थी। सबसे आगे आगे खूंखार तेज 30,000 खोकर थे, जिनके मुतालिक अनंतपाल ये ख्याल करता था कि वो अपने पहले ही हमले में मुसलमानों की सफ़ें उलट कर रख देंगे। बहरहाल राजा अनंतपाल अपने काम की इब्तिदा करते हुए सुल्तान के लश्कर पर रगों में वहशतों भरकर हर वजूद को रेजा रेजा करती करा तरकरा बिखरती आतिशी नवाह की तरह टूट पड़ा था।
سلطان محمود غزنوی اور اس کے سالاروں نے بھی شروع ہی سے اپنے آپ کو دفاع تک نہیں ڈالا، وہ بھی جارحیت پر اترے۔ چنانچہ سلطان نے بھی اپنے سالاروں اور لشکروں کے ساتھ بلند آوازوں میں پہلے زندگی کی دشواریوں میں جوش مارتی شعلوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ راجہ انند پال اور محمود کے لشکریوں کے ٹکرا جانے سے ایک بار پھر راحت و اطمینان موت و نستی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ ساعتوں کے سر چشمے نا امیدیوں اور تلخیوں میں بدلنے لگے تھے۔ دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے پر خونخوار ٹوٹ پڑے تھے۔ راجہ انند پال اس کے حواریوں اور اس کی اتحادیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنی فتح مندی اور کامیابی کو یقینی بنائے۔ شروع میں جو راجہ نے یہ امید لگائی تھی کہ اس نے اپنے لشکر کے آگے 30,000 کھکروں کو رکھا ہے، وہی مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے، لیکن مسلمانوں نے اپنے پہلی حملے میں کھکروں کو گریز کر رکھ دیا تھا۔ کھکروں کا قتل عام ہوا اور جو باقی بچے تھے وہ پچھلی صفوں کی طرف بھاگ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد راجہ انند پال کے لشکر کی حالت صدوم کی ناکام مکاریوں، امورہ کی گنہگاریوں، ہیچان آفرین اندھائیوں کی طرح ہو گئی تھی۔ راجہ انند پال اور اس کی اتحادیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کسی نہ کسی طرح پسپائی و شکست کو اپنا مقدر نہ بنانے دے، لیکن انہیں بری طرح ناکامیابی ہوئی۔ آخر انند پال اور اس کی اتحادیوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنے پڑاؤ کی ہر چیز جو کی تو وہی چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان کے متحد راجاؤں کے خلاف شاندار اور سنہری حروفوں میں لکھی جانے والی فتح مندی اور کامیابی تھی۔ انند پال کی اس جنگ اور اس شکست سے متعلق مورخین لکھتے ہیں، انند پال جو باپ کے انتقام اور فتح مندی کے کامل یقین اور جوش میں اپنے ہاتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا، ایسا اس نے اپنے لشکریوں کا دل بہلانے کے لیے کیا تھا اور ہاتھیوں کے ذریعے مسلمانوں کا قتال بڑھانا چاہتا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ غروب آفتاب کے قریب اسلامی لشکر کو پیچھے دھکیلنے اور پامال کرنے سے مایوس ہو کر راجہ خود پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھیوں کا رخ موڑا۔ چنانچہ راجہ کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر ہندو لشکری جو مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی تمام قوتوں اور کوششوں کو بیکار اور بلا نتیجہ پا چکے تھے، صفوں کو توڑ کر اور لڑائی سے موڑ کر ایسے بھاگنا شروع ہو گئے کہ پچھلوں کو اگلے سے کچھ بھی دریافت کرنے کا موقع نہ ملا، اور یہ لشکری تیز رفتاری سے مختلف گروہوں میں بٹ کر مشرق کی سمت بھاگے اور تاریکی کے پھیلنے سے پہلے ہندوستانی لشکر کا پڑاؤ بالکل خالی اور سنسان ہو گیا۔ اس جگہ کچھ مورخین نے انند پال کا دفاع کرتے ہوئے انند پال کے فرار کو اس کے ہاتھیوں کے بے قابو ہو جانے پر محمول کیا ہے، یعنی ہاتھی کسی وجہ سے محاوات کے قابو میں نہ رہا اور خود ہی اپنے لشکر کو کچلتا ہوا پیچھے کو بھاگا۔ چنانچہ ہندوستان کے لشکر نے یہ سمجھا کہ ہمارا سپہ سالار یعنی راجہ بھاگا جاتا ہے، لہذا وہ سب کے سب بھاگ پڑے۔ اس کے علاوہ ایک انگریز مورخ کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا کہ انند پال کا ہاتھی توپ کی آواز یا توپ کے گولے کے لگنے سے بھاگا تھا، مگر پھر خود ہی اس کی ترویج بھی کر دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ اس زمانے میں توپ لڑائی میں کہاں استعمال ہوتی تھی۔ بعض مورخین نے جلتی ہوئی رال کے کولے اور بارود کی وجہ سے ہاتھی کا بھاگنا بیان کیا ہے، مگر چونکہ صبح سے شام تک دونوں لشکریوں کا مصروف جنگ رہنا ثابت اور سب کو تسلیم ہے، لہذا ہندوستانی لشکر کی اس شکست کو محض اتفاقی شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ طرفین کو اپنے حوصلے پورے کرنے اور لڑنے کا کافی موقع مل چکا تھا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی ایک ہی دن رہی، شام کے ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ بہرحال یہ لڑائی ہندوستان کی مجموعی طاقت کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ ہندوستان کی اتنی بڑی جنگی طاقت اب تک کسی ایک میدان میں جمع نہ ہوئی تھی۔ اس شاندار اور سنہری فتح کے بعد سلطان محمود نے وقت ضائع کیے بغیر صرف 2 دن تک اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دیا، اس کے بعد وہ انند پال کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال راجہ انند پال اور اس کی اتحادی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، رات بھر سفر کرتے رہے اور اگلے روز دریائے چناب کے کنارے آ کر رکے۔ یہاں انند پال اور اس کی اتحادیوں نے پڑاؤ قائم کیا۔ وہ زخمی جو وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے ان کی دیکھ بھال کی گئی۔ اس موقع پر انند پال اور کوشل دیوی دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے پاس آئے۔ تب بڑی فکر مندی میں انند پال نے کوشل دیوی کو مخاطب کیا، کوشل راستے میں بھاگتے ہوئے مجھے خبر ہوئی کہ لشکر میں کاشی نہیں ہے، وہ کہاں گئی؟ اس پر بے پناہ تفرقات کا اظہار کرتے ہوئے کوشل کہنے لگی، بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جس وقت کھکروں کے سردار نوندواردن کا مقابلہ مسلمانوں کے سالار عبداللہ کے ساتھ ہو رہا تھا، اس وقت میں اور کاشی دونوں بڑی توجہ اور انہماک سے انفرادی مقابلہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اچانک کاشی مجھ سے علیحدہ ہوئی۔ مجھے اس کے علیحدہ ہونے کی خبر اس لیے نہیں ہوئی کہ میری نگاہیں انفرادی مقابلے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے کاشی کو بڑا تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملی۔
हमारे पड़ाव के लश्करियों का जो सालार था उसने भी तलाश किया, लेकिन काशी का कुछ पता नहीं चला। और जब जंग के बाद हमें पसपाई इख्तियार करना पड़ी, तब तक काशी का कहीं नामो निशान नहीं मिला। मेरे भाई, लगता है उसे जमीन निकल गई हो या आसमान की तरफ परवास कर गई हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि काशी किधर गई। उसकी इस तरह गायब होने से मैं सख्त परेशान और फिक्रमंद हूँ। कौशल देवी की इस गुफ्तगू से अनंतपाल भी फिक्रमंद हो गया था। फिर उसने अपने उन मुखबिरों को जो इस वक्त उसके लश्कर में मौजूद थे, ये हुक्म दिया कि वो चारों तरफ फैलकर काशी कुमारी को तलाश करे और देखे वो कहाँ है। दरिया पंजाब के किनारे, दरिया चिनाब के किनारे ये पड़ाव 2 दिन तक कायम रहा। यहाँ तक कि अनंतपाल और उसके इत्तेहादियों को यह खबर पहुंची कि सुल्तान महमूद गजनवी उनका ताकुब करने के लिए बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से मशरिक का रुख कर रहा है। लिहाजा अनंतपाल और उसके इत्तेहादियों ने भी पड़ाव उठाया और पहले की तरह वो भी मशरिक की तरफ भागने लगे थे। चुनांचे राजा अनंतपाल सुल्तान के इस ताकुब की खबर सुनकर लाहौर नहीं गया, बल्कि उसने नगरकोट या किला भीम का रुख किया। नगरकोट को भीम के अलावा मौजूदा नाम कांगटाह से भी पुकारा जाता है। इस भाग दौड़ मुफादी में नगरकोट का राजा भी अपने शिकस्त खुर्दा लश्कर के साथ अनंतपाल के हमरा था। लिहाजा दोनों राजा अपने लश्कर को लेकर नगरकोट जा पहुंचे। नगरकोट चूंकि पहाड़ी मकाम होने की वजह से बहुत मजबूत और नाकाबिल तस्खीर मकाम ख्याल किया जाता था। लिहाजा नगरकोट के राजा और अनंतपाल का ख्याल था कि सुल्तान अव्वलन तो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, अगर पहुंचेगा तो उस कोहिस्तानी किले को फतह करने में कामयाब नहीं होगा। मुअर्रिखीन का एक ग्रोह लिखता है कि सुल्तान महमूद नगरकोट के हिंदुओं से मारकाही करने के लिए आगे बढ़ा। उस जमाने में नगरकोट किला भीम के नाम से मशहूर था। मारता हुआ नगरकोट पहुंचा और उस किले का मुहासरा कर लिया, जिसके अंदर नगरकोट का राजा और लाहौर का राजा अनंतपाल दोनों मुकीम थे। एक किला राजा भीम के जमाने में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था और हिंदुओं के नजदीक, जिसके अंदर नगरकोट का राजा और लाहौर का राजा दोनों मुकीम थे। ये किला राजा भीम के जमाने में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था और हिंदुओं के नजदीक बकौल मुअर्रिखीन भूतों का घर समझा जाता था। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि गिरद पेश के तमाम राजा अनवा और अक़साम के आला दर्जा के अशिया बतौर नजराना वहां बेचते थे और अपने इसी फेल को कुर्ब खुदाबंदी का एक बहुत बड़ा वसीला तस्वर करते थे। चूंकि इस किले में चारों तरफ से दौलत आकर जमा होती थी, इसलिए यहाँ सोने, चांदी और जवाहरात और मोतियों वगैरह का इस कदर बड़ा जखीरा था कि ऐसा शायद ही किसी बादशाह के खजाने में हो। मुअर्रिखीन मजीद लिखते हैं कि किला बड़े जंगजू और बहादुर लश्करियों की आमा जागह नहीं था। यहाँ के नजदीक यहाँ के ज्यादातर मकीन ब्राह्मण मंदिर के पुजारी थे, इसलिए सुल्तान के अजीमुशान लश्कर का रोब दाब उन लोगों पर इस कदर हुआ कि वो सख्त हिरासा हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि मुहासरे के तीसरे रोज उन्होंने किले का दरवाजा खोल दिया और सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर जान की अमान मांगी। सुल्तान ने दरख्वास्त कबूल की और उनकी जान बख्शी। खुद अपने चंद माहिदीन को लेकर अंदर दाखिल हुआ। उस किले से सुल्तान ने बहुत सी दौलत हासिल की। 7 करोड़ नकद, 700 मन सोने और चांदी के जेवरात और 200 मन खालिश सोना, 2000 मन खालिश चांदी और 20 मन अनवर अक़साम की जवाहरात और राजा भीम के जमाने से उस मंदिर में जमा हो रहे थे महमूद की मिल्कियत बन गई। इसी नगरकोट से मुतालिक मुअर्रिखीन का दूसरा गिरोह कहता है कि सुल्तान ने दरिया चिनाब को अबूर करने के बाद सोहदरा, वहां से सियालकोट, वहां से कुटहा पहुंचा और माधोपुर के रास्ते से होता हुआ नगरकोट यानी भीम नगर पहुंचा। किला एक पहाड़ी पर वाक़ था। मंदिर के पंडितों ने और वहां के हुक्मरानों ने महमूद को लालच दिया, मगर महमूद ने मुहासरा तंग कर दिया। तारीखी रिवायत के मुताबिक यहाँ के मंदिर महाभारत की जंग का मशहूर हिंदू कोरो हीरो भीष्म के जमाने से कायम था। चंद मुअर्रिखीन ने इसे महामाया देवी का बुत बताया है। भीमनगर का नाम 2 भीमा के नाम पर भी हो सकता है, जो देवता महादेवी की पत्नी थी। महाया भी उस देवी का एक नाम था। मुअर्रिखीन का एक गिरोह मजीद लिखता है कि इस मंदिर और शहर से महमूद को बेशुमार माले गनीमत और ताउन उसूल हुआ। 7 करोड़ नकद दीनार, 700 मन सोने और चांदी के ज़ुरूफ और 200 मन खालिश सोना, 2000 मन चांदी और बेशुमार हीरे जवाहरात के अलावा एक खालिश चांदी का बेशबहा खीमा भी मिला, जिसकी लंबाई चौड़ाई 40 और 20 गज थी। इसको 24 सोने और चांदी की थी। खालिश चांदी का एक घर भी कब्जे में आया, जिसकी लंबाई चौड़ाई 30 और 15 गज थी। इस घर के टुकड़े किए जा सकते थे, जिन्हें घर बनाने के लिए जोड़ा जा सकता था। सुल्तान महमूद ने मामूल की तरह मंदिर में मौजूद औरतों को आजाद कर दिया। दरअसल ऐसे मंदिर पुजारियों और पंडितों के अयाशों के अड्डे थे। राजा और उमरा खूबसूरत लड़कियां मंदिर की खिदमत के लिए भेजा करते थे।
नगरकोट की फतह के बाद जो हालत पेश आए उसके मुताबिक मोरखीन के दो गुरोह हैं। क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी ने नगरकोट फतह कर लिया था, लिहाजा नगरकोट का राजा भी अपनी जान बचाकर भाग गया था। इस सिलसिले में मोरखीन का पहला गुरु ये कहता है कि सुल्तान महमूद गजनवी अभी नगरकोट ही में मुकीम था कि अनंतपाल ने जो पहाड़ों के अंदर छुपा था पैगाम भेजा कि जिस तरह आपने इससे पहले भी बार बार मेरी और मेरे बाप की खताएं माफ की है, एक मरतबा और मेरी गुस्ताखी से दरगुरेज फरमाए। मैं वादा करता हूँ कि अब शराइत फरमाबरदारी से बजा लाने और सालाना खिराज अदा करने में कोई कोताही अमल नहीं आएगी। इसके अलावा नगरकोट के राजा ने भी इसी तरह उफू और माफी की दरख्वास्त भेजी और ब्राह्मणों की साजिश और कोशिश से आमदा जंग होने पर इजहार शर्मिंदगी और मलाल किया। मोरखीन मजीद लिखते हैं कि सुल्तान ने इस दरख्वास्त को बिला तअम्मुल मंजूर कर लिया, क्योंकि सुल्तान को मालूम हो चुका था कि ब्राह्मणों और पंडितों की कोशिशों ने यह हंगामा बर्पा करने और हिंदुस्तान वालों के दिलों में नफरत और अदावत पैदा करने की कोशिश की है। लिहाजा उसने माफी और उफू का आम ऐलान कर दिया कि जो हिंदू हमारे लश्कर में मुलाजिम होना चाहे वो खुशी से लश्कर में शामिल हो सकते हैं। हम उनको मिस्र मुसलमानों के तमाम हुकूक अता करेंगे। चूंकि पेशावर की शिकस्त ने आम लोगों के दिलों में एक जबरदस्त मायूसी पैदा की थी, लिहाजा दरिया सिंध को अबूर करने से पहले मुख्तलिफ मकामात से आकर 10,000 हिंदू जंगजू सुल्तान महमूद के लश्कर में शामिल हो गए और सुल्तान ने उन्हीं में से एक हिंदू को सिपह सालार का अहदा देकर उन 10,000 हिंदुओं को एक अलहदा लश्कर की शक्ल दे दी थी। हिंदुओं ने इस लश्कर के कायम होने से सुल्तान का मदाया ये था कि इस नफरत को जो हिंदुओं के दिलों में सल्तनत गजनी की तरफ से कायम हुई थी दूर कर दिया जाए और इस बात को यकीन दिलाया जाए कि हिंदुओं पर बखूबी इत्मीनान कर सकते हैं। इसके अलावा यही मौजूद मजीद लिखता है कि इससे ये भी साबित होता है कि सुल्तान ने अनंतपाल वगैरह से ये फरमाइश की होगी कि तुम हमारे लश्कर में हिंदुओं को भर्ती करा दो। अनंतपाल और नगरकोट के राजा ने 10,000 सवारों को सुल्तान के लश्कर में भर्ती कर दिया था। बहरहाल सुल्तान महमूद के लश्कर में हिंदू शामिल हुए और उनकी ताकत बराबर सुल्तानी लश्कर में तरक्की करती रही। इस वाक़े का नक्शा खींचते हुए मोरखीन और मजीद कुछ लिखते हैं। उसके बाद सुल्तान ने गजनी की तरफ कूच किया। सुल्तान ने गजनी की तरफ जाते हुए न किसी शहर को लूटा, न किसी को जबरदस्ती पकड़कर मुसलमान बनाया, न किसी को गिरफ्तार करके गुलाम किया, बल्कि निहायत अमन और अमान और खामोशी के साथ पेशावर, जमरूद, खैबर के रास्ते गजनी की तरफ चला गया। अगर सुल्तान महमूद गजनवी वाकई ऐसा होता जैसे कि गुमराह कुन तारीखों में अक्सर लोगों को पढ़ाया जाता है, तो नागरकोट से पेशावर तक वो निहायत आबदा और सरसाब इलाके में सफर करता हुआ गुजरा। इस आबाद इलाके के शहरों और कस्बों को लूटता और खाक सियाह बनाता हुआ गुजर जाता। खून की नदियां बहाकर पंजाब के दरियाओं का पानी सुर्ख कर देता। अनंतपाल महमूद के चले जाने के बाद अपनी दारुल हुकूमत लाहौर में आया था। उस वक्त सारा इलाका और दारुल हुकूमत बिल्कुल बेवाली वारिस पड़ा था। महमूद को किसी के मज़ाहमत, किसी के मुकाबले का भी अंदेशा न था, मगर उसने नगरकोट से पेशावर तक किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और सबसे बड़ी और अहम बात यह कि लाहौर जैसे मशहूर और अहम शहर का भी उसने कस्द न किया। जब मोरखीन का दूसरा गुरु कहता है कि नगरकोट के राजा और लाहौर के राजा अनंतपाल को सुल्तान महमूद गजनवी से माफी नारायण की फतह के बाद मिली, जहां तक नारायण का ताल्लुक है तो उसके महलों से मुतालिक भी मोरखीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। अब्दुल्लाह करातगीन गजनी में अपने घर में एक रोज अपने बाप करातगीन, भाई संजर की बीवी अरजान, अहमद नियालकीन, उसकी बीवी पाशान और अपनी बहन खिसार के साथ बैठा हुआ था। सब करातगीन के घर में किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस पर अब्दुल्लाह करातगीन का छोटा भाई संजर अपनी जगह से उठा और कहने लगा, मैं देखता हूँ दस्तक किसने दी है। इसके साथ ही आगे बढ़कर उसने हवेली का दरवाजा खोला तो दरवाजे पर सुल्तान महमूद के लश्कर के काजी शिराज और उनका छोटा बेटा मुहिबुद्दीन था। काजी शिराज और उसके बेटे मुहिबुद्दीन को अपने हवेली के दरवाजे पर देखते हुए संजर मुस्कुरा और कहने लगा, लगता है आज कोई गैर मामूली वाकया रूनुमा होने वाला है, जो काजी शिराज हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इसके साथ ही संजर ने दरवाजा खोल दिया। काजी शिराज अपने बेटे मुहिबुद्दीन के साथ अंदर दाखिल हुए। फिर संजर को मुखातिब करके पूछा, बेटे पहले ही बता तुम्हारी हवेली में इस वक्त कौन कौन है। इस पर संजर मुस्कुराते हुए कहने लगा, घर पर बाबा हैं, भाई अब्दुल्ला और हमारे हमसाया भाई अहमद नियालकीन, उनकी बीवी और उनका भाई और मेरी बहन और मेरी बीवी अरजान, जो अहमद नियालकीन की बहन है, सब यही बैठे गुज़िश्ता जंगों से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। संजर के इन अल्फाज पर काजी शिराज ने खुशी का इजहार किया। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसका मतलब है मैं बड़े अच्छे वक्त पर आया हूँ। चलो मैं भी उन सब के साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। चुनांचे संजर ने हवेली का दरवाजा बंद किया। काजी शिराज और उसके बेटे मुहिबुद्दीन को लेकर वो आगे बढ़ा। जब वो दीवान खाने के दरवाजे पर आए तो सब ने जब काजी शिराज को देखा तो अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। अब्दुल्लाह
करातगीन का बाप करातगीन दरवाजे की तरफ बढ़ा, पुरजोश अंदाज में काजी से मुसाफा करते हुए उन्हें अंदर ले गया। फिर सब ने आगे बढ़कर काजी और उसके बेटे मुहिबुद्दीन से मुसाफा किया। जब सब बैठ गए तब काजी शिराज ने सब पर गहरी निगाह डाली, फिर खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, करातगीन, मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला से गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं समझता हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस वक्त आया हूँ जब तुम सब लोग यहाँ मौजूद हो और अहमद भी अपने अहले खाना के साथ यहाँ बैठा हुआ है। काजी के इन अल्फाज पर अब्दुल्ला का बाप करातगीन चौंका था। कुछ देर गौर से काजी की तरफ देखता रहा, फिर पूछा, क्या आप मेरे बेटे अब्दुल्ला की कोई शिकायत लेकर आए हैं? क्या इससे कोई गलती, कोई कोताही हुई है? आप लश्कर के काजी हैं, लश्कर ही में रहते हैं, क्या लश्कर में इससे कोई गलती हुई है? जवाब में रद्द अमल के तौर पर काजी शिराज ने मुस्कुराते हुए नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, करातगीन, तुम गलत समझे हो। अब्दुल्ला एक ऐसा बेटा है जिस पर जिस कदर फख्र किया जाए कम है। तुम एक खुशकिस्मत बाप हो। मैं समझता हूँ अब्दुल्ला का बाप होना भी तुम्हारे लिए एक सादत है। यही अब्दुल्ला है जिसने मैदान जंग के इनफरादी मुकाबले में बड़े बड़े सुरमाओं को अपने सामने लम्हों के अंदर जेर कर दिया। बस इसके इनफरादी मुकाबले में ही एक इनकलाब तब्दीली लेकर आया है। इस मौके पर अब्दुल्ला कुछ पूछना ही चाहता था कि अब्दुल्ला करातगीन की बहन खिसार बोल उठी, फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगी, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं मैं समझी नहीं। मेरे भाई ने अगर इनफरादी मुकाबला जीते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, यह हमारे लिए बड़ी सादत है, पर इससे कौन सा इनकलाब, कौन सी तब्दीली रूनुमा हुई है? काजी शिराज कुछ देर खामोश रह कर सोचता रहा, दोबारा करातगीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, करातगीन, तुम्हारे दो बेटे हैं और एक बेटी। नियालकिन का एक भाई और एक बहन है। तुमने अपने छोटे बेटे संजर की शादी नियालकिन की बहन अरजान से कर दी और अपनी बेटी की शादी उस्मान से कर दी, पर तुमने अब्दुल्ला के मुतालिक कुछ नहीं सोचा। काजी शिराज के इन अल्फाज पर करातगीन चौंका था, कहने लगा, काजी शिराज, अब्दुल्ला मेरे लिए सबसे प्यारा और हरदिल अजीज बेटा है। यूं जाने इसकी शादी का मामला मैंने इसी पर छोड़ रखा है। जिस वक्त संजर और खिसार की शादी का इत्माम होने लगा तो मैंने इतराज किया था कि पहले अब्दुल्ला तुम्हारी शादी होनी चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला कहने लगा, बाबा मैं बड़ा भाई हूँ, संजर और खिसार दोनों की शादी करने के बाद मैं अपने मुतालिक सोचूंगा। दरअसल हमारे घर में चूंकि कमाने वाला अब्दुल्ला ही है, इसी बिना पर इसका ख्याल है कि इसका फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई और बहन की शादी करे। अब आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो समझ में अभी तक कुछ नहीं आया। जवाब में काजी शिराज मुस्कुरा और कहने लगा, करातगीन, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला से कराना चाहता हूं तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? इस मौके पर तकरीबन सारे ही मुस्कुरा दे, यहाँ तक कि अब्दुल्ला करातगीन का भाई संजर बोला काजी शिराज को मुखातिब करके, मोहतरम काजी शिराज, आपकी बेटी ही नहीं है तो आप मेरे भाई की शादी किससे करेंगे? आपका ये तो एक ही बेटा है जो आपके सामने बैठा हुआ है, जिसका नाम मुहिबुद्दीन है। संजर जब खामोश है तब नियालकिन बड़ी संजीदगी में काजी शिराज की तरफ देखते हुए कहने लगा, संजर ने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है और मैं ये भी समझता हूँ कि आप इस मौके पर मजाक नहीं कर सकते, जरूर बात की तह में कुछ ना कुछ तो है। इस पर काजी शिराज भी बड़ी संजीदगी में कहने लगे, मेरी एक बेटी है और उसी बेटी की शादी मैं अब्दुल्ला से कराना चाहता हूँ। इस बात को मैं आप लोग यूं भी कह सकते कि ये मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि इसकी शादी अब्दुल्ला से हो। इन अल्फाज को अगर मजीद खोलकर आप सुनना चाहते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो अब्दुल्ला को पसंद करती है। यहाँ तक कहने के बाद काजी शिराज जब खामोश है तब इस बार अहमद नियालकिन गौर से काजी शिराज की तरफ देखते हुए पूछने लगा, काजी साहब, ये तो मैं जानता हूँ कि आपकी कोई बेटी नहीं, अब जबकि आपने इस मौजू पर गुफ्तगू की है तो बताइए अब्दुल्ला की शादी आप किससे करना चाहते हैं? अब्दुल्ला मेरे छोटे भाई की तरह और फिर अब इससे मेरा एक बड़ा अजीज और गहरा रिश्ता भी कायम हो चुका है। अहमद नियालकिन जब खामोश हो तब काजी शिराज अपने होठों पर जुबान फेरते हुए कहने लगा, साहिबो, मैं तुमसे ठट्टा और मजाक तो नहीं कर रहा, मैं हकीकत तुम पर इंकिशाफ करना चाहता हूँ। इसके बाद फैसला करना तुम्हारा काम है। तुम चाहते हो पंजाब के राजा जयपाल की दो बेटियां थी। जिस वक्त जयपाल के साथ हमारी पहली जंग हुई उस वक्त वो दोनों नाबालिग थी, बिल्कुल छोटी थी। जयपाल के बाद उसके बेटे अनंतपाल के साथ हमारी जंग हुई, जब भी वो दोनों लड़कियां अभी नाबालिग थी। अब वो बालिग हो चुकी है। इनमें से जो बड़ी है उसका नाम काशी कुमारी है और उसकी मंगनी और सगाई बीढ़न के राजकुमार कुन्नूर से हो गई थी, जबकि छोटी बेटी बुलुगत की हद तक पहुंचने से पहले ही अपने सालार कोई राज की तरफ माइल थी। जहां तक मुझे बताया गया कि वो कोई राज से मोहब्बत नहीं करती थी, वो एक अच्छा और माहिर तेरजन था और छोटी बेटी का नाम जिसका कौशल देवी है उसके कोई राज की तेरजनी की हुनरमंदी और महारत ही को पसंद करती थी। चुनांचे उसी कौशल देवी के कहने पर सबसे पहले कोई राज इनफराती मुकाबले के लिए मैदान में उतरा था और अब्दुल्ला ने उसे मौत की घाट उतारा था। उसके बाद बीढ़न के राजा का राजकुमार राजकुन्नूर अगली जंग में इनफरादी मुकाबले के लिए उतरा और अब्दुल्ला ने उसे भी मौत की गहरी नींद सुला दिया। मामला यही तक खत्म नहीं हुआ जहां तक राजा जयपाल की बेटी काशी कुमारी का ताल्लुक था। उसमें कोई शक नहीं कि उसकी मंगनी बीढ़न के राजकुमार राजकुन्नूर से हुई थी, लेकिन यह कोई मोहब्बत की मंगनी नहीं थी। बस इसके घर वालों ने बीढ़न के राजकुमार से उसकी मंगनी तय कर दी थी
और वो खामोशी से उसे कबूल कर गई। चुनांचे इनफरादी मुकाबले में जब अब्दुल्लाह ने यके बादी दिकर कोई राज और राजकुनूर दोनों को मौत के घाट उतार दिया, तब तीसरा इनफरादी मुकाबला वहशी खोरों के सालार और सरबरा ननंदवर्धन से हुआ। ननंदवर्धन अपने आप को बड़ा लाजवाब और नाकाबिल तस्कीर तेजस ख्याल करता था, लेकिन उसका इनफरादी मुकाबला भी अब्दुल्ला से हुआ और अब्दुल्ला ने ननंदवर्धन का भी काम तमाम कर दिया। जिस रोज अब्दुल्ला का इनफरादी मुकाबला ननंदवर्धन से हुआ था, उसी रोज उस मुकाबले के दौरान पंजाब के मौजूदा राजा अनंतपाल की बहन काशी कुमारी अपने लश्कर से निकली। वो घोड़े पर सवार थी और अपने घोड़े के साथ एक लंबा चक्कर काटती हुई हमारे लश्कर में दाखिल हुई। उसने सिर्फ ये कहा कि मुसलमानों के लश्कर के काजी से मिलना चाहती है। चुनांचे मेरे लश्कर के कुछ मुहाफिज उसे मेरे पास ले आए। उस लड़की ने मेरे सामने इस बात को तस्लीम किया कि वो चूंकि अब्दुल्ला करातगीन को पसंद करने लगी है, लिहाजा वो हमारे लश्कर में दाखिल हो गई। मुझसे उसने इल्तिजा की कि इस दायरा इस्लाम में दाखिल किया जाए, इस्लाम के सारे अरकान और इबादत के तरीके से उसे सिखाया जाए, और जब वो सब कुछ सीख जाए तब उसकी जज्बात का इजहार अब्दुल्ला और उसके अहले खाना से किया जाए। मैं तुम लोगों पर इंकिशाफ करूं कि काशी कुमारी गुज़िश्ता कई महीने से मेरे बेटी की हैसियत से मेरे यहाँ मुकीम है। मेरी बीवी भी इसे अपनी बेटी ख्याल करती है। वो बेटी बेचारी प्यारी है, बस उसकी एक ही ख्वाहिश है कि उसकी शादी अब्दुल्ला से हो जाए। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में तुम लोगों का क्या जवाब है। यहाँ तक कहने के बाद काजी शिराज जब खामोश होगा तब सब लोग गहरी सोचों में डूब गए। यहाँ तक कि अब्दुल्ला का बाप करातुद्दीन बोला और काजी शिराज की तरफ देखते हुए कहने लगा, पहले तो मैं उस लड़की को मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने लश्कर से निकलकर आपके पास आई, इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के अरकान और इबादत के तरीके सीखे। मैं इस बिना पर भी उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे बेटे अब्दुल्ला को पसंद किया और उससे शादी करने की ख्वाहिश की। पर इसमें एक कबाहत और खतरा भी है। कैसा खतरा? काजी शिराज ने तेज निगाहों से करातगीन की तरफ देखते हुए पूछ लिया था। इस पर करातगीन ने बोला, जैसा कि सब जानते हैं कि उस काशी कुमारी की मंगनी बीरहन के राजकुमार राजकुनूर से हुई थी, जो एक इनफरादी मुकाबले में मेरे बेटे अब्दुल्ला के हाथों मारा गया था। कहीं ऐसा ना हो कि काशी कुमारी नाम की ये लड़की अपने मंगेतर राजकुनूर का इंतकाम लेने के लिए मेरे बेटे अब्दुल्ला से शादी करने की ख्वाहिश की हो। करातगीन जब खामोश था तब काजी शिराज बड़ी संजीदगी में कहने लगे, एक मासूम हसीन और खूबसूरत लड़की बेचारी क्या इंतकाम लेगी? इसने इंतकाम लेना होता तो अपने मरकजी शहर लाहौर में क्याम करके किसी रद्द अमल का इजहार करती या अपने साथ कुछ दस्ते मुकर्रर करती, ताक में रहती और अब्दुल्ला पर हमलावर होने की कोशिश करती। यहाँ वो अकेले आकर इस्लाम कबूल करने के बाद गजनी शहर में रिहाइश इख्तियार करेगी। कैसे और क्यों कर अब्दुल्ला से अपना इंतकाम लेगी? फिर वो गुज़िश्ता कई माह से मेरे यहाँ मुकीम है, मैं उसका जायजा लेता रहा हूँ। वो बड़ी प्यारी और मासूम बच्ची है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि वो किसी इंतकाम वगैरह के लिए इधर नहीं आई और ना ही ऐसा करने के लिए अब्दुल्ला से शादी की ख्वाहिशमंद है। दरअसल वो अब्दुल्ला की शुजात, उसकी हिम्मत, उसकी जवान मर्दी, तेज जनी में उसकी महारत और हुनरमंदी से मुतासिर है। अब्दुल्ला ने जो लगातार मुकाबले जीते, उसकी यही जीत का काशी कुमारी के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर गई है। काजी शिराज जब खामोश हो तब करातगीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, पहले ये कही कि वो बेटी कहाँ है ताकि मैं उससे मुलाकात करूं। करातगीन के बाद अहमद नालकिन भी मुस्कुराते हुए बोला, वो बेचारी लड़की क्या इंतकाम लेगी? अगर वाकई अब्दुल्ला को पसंद करती है तो मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि काशी कुमारी को आप हमारे सामने लाए ताकि हम उससे गुफ्तगू करें? मेरी भी पाशान यहाँ बैठी हुई है, मेरी बहन अजान अब इस घर में है, अब्दुल्ला की बहन खिसार भी यही है, भाई संजर भी है, मेरा छोटा भाई उस्मान भी है। सब मिलकर फैसला करते हैं और अगर वो लड़की वाकई पुरखुलूस अंदाज में अब्दुल्ला की तरफ माइल है तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी खुशी और सादत की बात है। मेरे ख्याल में इन हालात में अब्दुल्ला इस लड़की को ठुकराएगा नहीं। इस मौके पर काजी शिराज ने अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए पूछा, बेटे अब तुम भी अपने जज्बात का इजहार करो। इस पर अब्दुल्ला मुस्कुराते कहने लगा, काजी साहब मेरा बाप जिंदा है, मेरे लिए उनका फैसला आखिरी है। मैंने आज तक कोई भी काम उनके मशवरे के बगैर नहीं किया। जो फैसला ये करेंगे वो मेरे लिए आखिरी होगा। अब्दुल्ला के इस जवाब से सब खुश हो गए थे, यहाँ तक कि काजी शिराज ने अपने सामने बैठे अपने बेटे को मुखातिब किया और कहने लगा, मुहिबुद्दीन मेरे बेटे जाओ बहन को साथ लेकर आओ। थोड़ी देर बाद काजी शिराज का बेटा मुहिबुद्दीन लौटा। उसके पीछे हसीन और खूबसूरत काशी कुमारी भी थी। अपने बदन के अलावा उसने अपने चेहरे को भी ढांप रखा था। जब वो दीवान खाने के दरवाजे पर नमदार हुई तब अपनी जगह से उठकर काजी शिराज ने उसे अपने करीब आने को कहा। मुहिबुद्दीन उनके पीछे काशी कुमारी आगे बढ़ी और काजी शिराज के पास आकर बैठ गई। कुछ देर खामोश रही। उस दौरान करातगीन, उसका छोटा भाई संजर, बेटी खिसार, उसके अलावा अहमद नालकिन, उसका भाई उस्मान, बीवी पाशबान, संजर की भी अरजान सब गौर से काशी कुमारी की तरफ देखते रहे, जिसकी सिर्फ पेशानी देखी जा सकती थी। पेशानी से भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लड़की इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश है। आखिर गुफ्तगू का आगाज काजी शिराज ने किया और काशी कुमारी की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी यहाँ जिस कदर लोग बैठे हैं, क्या तुम इन सब में अब्दुल्ला करातगीन को पहचानते हो? कौन है? चेहरे से नकाब उठाए बिना ही काशी कुमार ने शिराज की तरफ देखा,
फिर दाएं हाथ की उंगली से उसने अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया और साथ ही उसकी गुनगुनाती खूबसूरत आवाज सुनाई दी। ये सामने अब्दुल्ला बैठे हैं। काशी कुमारी के खामोश होने पर काजी शिराज फिर बोला और कहने लगा, बेटी तेरी मंगनी और सगाई बीडहन के राजकुमार कुन्नूर से हुई थी। उस राजकुन्नूर को एक इनफरादी मुकाबले में अब्दुल्ला ने मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा तेरी छोटी बहन कौशल देवी का रुझान कोई राज की तरफ था। वो इनफरादी मुकाबले में अब्दुल्ला के हाथों मारा गया। बेटी अब अगर लोग तुम पर शक करें तो अब तुम अब्दुल्ला से मोहब्बत किस वजह से करने लगी हो? अपना कोई मकसद हासिल करना चाहती हो, राजकुन्नूर का इंतकाम लेना चाहती हूँ, तो बेटी इसका तेरे पास क्या जवाब होगा? काजी साहब जब खामोश हुए तब धीमे लहजे में काशी बोली, बीडहन के राजकुमार से मेरी सगाई मेरे घर वालों ने तय की थी। इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। जब वो इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरा तो मैंने तो उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। अगर उसे अपनी तेजनी पर इतना ही घमंड था तो फिर मुकाबला जीतता, कि उसमें दमखम नहीं था। लिहाजा अब्दुल्ला के हाथों अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। उसमें ना मोहतरम अब्दुल्ला का कसूर है, ना इस सिलसिले में मैं मुजरिम हूँ। मैंने उसे कोई मोहब्बत नहीं की, बस उससे रिश्ता घर वालों ने तय कर दिया। मैं चुपचाप बिक जाने वाली बकरी की तरह खामोश रहकर सब देखती रही। यहां तक कहने के बाद काशी कुमारी कुछ सोचा, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, अगर लोग ये मुझ पर शक करते हैं मैं किसी मकसद के तहत ऐसा कर रही हूँ, मोहतरम अब्दुल्ला को नुकसान पहुंचाने लगी हूँ, मैं सबके सामने अपनी मोहब्बत की गहराई का इजहार नहीं करूंगी, इसलिए कि मैं इससे पहले सब कुछ आपसे कह चुकी हूँ। इतनी बुरी नहीं हूँ कि जिसको अपनी जिंदगी का साथी बनाओ उसे नुकसान पहुंचाऊं। साथी भी हो जिसके साथ मेरी मोहब्बत और चाहत वाबिस्ता हो और जिसे मैं अपनी मर्जी और ख्वाहिश से अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहती हूँ। इसके बावजूद अगर मुझ पर शक करते हैं तो मुझे अब्दुल्ला का साथी बना दे, मेरे लिए अपनी हवेली के कमरा मुख्तसर कर दे जिसकी हालत जंदान के कमरे जैसी हो, उसमें मुझे बंद कर दिया ताकि मैं मोहतरमा अब्दुल्ला और घर के किसी फर्द का कोई नुकसान न पहुंचा सकूं। मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं जिसे अपनी जिंदगी का साथी बनाऊं उसे या उसके लवाहिकीन अजीज और अकारीब को नुकसान पहुंचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करूं। यहाँ तक कहने के बाद काशी कुमारी रुकी, फिर अपने पहलू की तरफ बैठे मुहिबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई जिस कदर यहाँ लोग बैठे हैं उनमें से 3 से तो मैं आशना हूँ। एक तुम, एक मोहतरम काजी शिराज और सामने बैठे हुए अब्दुल्ला करातगीन। क्या आप दूसरे लोगों को मुझसे तारुफ नहीं कराएंगे? इस पर मुहिबुद्दीन बोला और कहने लगा, मेरी अजीज बहन, मैं तुम से इन सब का तारुफ कराता हूँ। फिर उसने उन सब का तारुफ करा दिया। कुछ देर खामोशी रही। उसके बाद करातगीन ने काशी कुमारी की तरफ देखते हुए कहा, बेटी मैं तुझ पर मुकम्मल भरोसा और इत्मीनान करता हूँ। फिर करातगीन अपने दाएं हाथ से काशी का सर अपने करीब किया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया, साथ ही बड़ी चाहत और शफकत में कहने लगा, मेरी बेटी सुन, मेरी बच्ची, मैं तेरी शादी अब्दुल्ला से करने के लिए तैयार हूँ। आज से इस हवेली में तेरी हैसियत मेरी बेटी और इस हवेली की इज्जत से है। करातगीन के इस फैसले पर काशी मुस्कुराई, फिर कहने लगी, बाबा सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन आप पहले ये तो पूछे क्या मोहतरम अब्दुल्ला मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए तैयार है? जवाब में करातगीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटी जब मैं फैसला कर चुका हूँ तो अब्दुल्ला की क्या मजाल की इनकार कर दे? तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तुम खुद ही पूछ लो। करातगीन की अल्फाज पर काशी कुमारी को शर्मा सी गई थी। इस मौके पर अहमद न्यालकिन बोला और अब्दुल्ला को मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल्ला मेरे भाई, अब तक तुम बिल्कुल खामोश रहकर सारा तमाशा देखते रहे, तुम भी तो कुछ बोलो ना। इस पर अब्दुल्ला और उसके पहले में बैठी उसकी बहन खिसार दोनों मुस्कुरा रहे थे। फिर खिसार ने अब्दुल्ला के कोहनी मारी, शायद उसके ऐसा करने का मतलब था कि वो कुछ बोले। चुनांचे अब्दुल्ला मुस्कुराते कहने लगा, मैं काशी कुमारी से शादी के लिए तैयार हूँ। इन अल्फाज ने गोया उस कमरे के अंदर खुशियां बिखेर दी। उसके साथ ही काशी कुमारी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। जब सबने उसका चेहरा देखा तो उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न और उसके जज्ब कशिश की सब तारीफ करने लगी। उसके बाद करातगीन ने काजी शिराज की तरफ देखा और कहने लगा, काजी साहब आप भी यही मौजूद है, और इत्तेफाक की बात मेरे बेटे संजर के अलावा न्यालकिन भी यहाँ, इनका भाई उस्मान भी यहाँ मौजूद है जो अब मेरा दामाद है। चुनांचे काशी अब वापस तुम्हारे साथ तुम्हारी हवेली में नहीं जाएगी, यही रहे और अभी इसी वक्त तुम काशी और अब्दुल्ला का निकाह पढ़ाओ और मेरी अजीज बहू की हैसियत से काशी ही हमारे यहाँ रहेगी। करातगीन अल्फाज पर काशी के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां बिखर रही थी। आंखों में मोहब्बत भरी चमक थी और ये चमक कभी कभी अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ भी बढ़ी जाती। काशी की इस गुफ्तगू के दौरान बार बार अब्दुल्ला की तरफ देखती। चुनांचे करातगीन के अल्फाज के जवाब में काजी शिराज खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं खुश हूँ कि आप आज ही काशी कुमारी और अब्दुल्ला की शादी के लिए तैयार है। इस मौके पर पहली बार अब्दुल्ला करातगीन की छोटी बहन खिसार बोली और कहने लगी, ये जो फैसला हुआ है इसे हम दिलो जान से कबूल करते हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और सादत की बात है। काशी जैसी लड़की मेरी भाई अब्दुल्ला की बीवी बन रही है, लेकिन इससे पहले हमें बाजार जाना होगा। काशी के लिए कपड़े और जरूरियात का दूसरा सामान खरीदा जाएगा जो एक अच्छी और पसंदीदा दुल्हन के लिए खरीदा जाता है। इसके बाद शाम तक इस शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा।
خسار کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا۔ کاشی کماری بھی بڑے خلوص اور محبت سے خسار کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ پھر قراتگین بولا کرنے لگا، خسار میری بیٹی، رقم میں دیتا ہوں، تم خود پاشان ارجان تینوں اٹھو، کاشی کو اپنے ساتھ بازار لے جاؤ، ہر چیز اس کی مرضی اس کی خواہش کے مطابق خریدو، جب تم سب یہ خریداری مکمل کر کے واپس آؤ گی تب اس شادی کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ قراتگین کی الفاظ پر سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر قراتگین اٹھا، نقدی کی ایک تھیلی اس نے خسار کو تھما دی۔ پھر خسار پاشان ارجان تینوں کاشی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، ہر چیز انہوں نے کاشی کماری کی مرضی اس کی خواہش کے مطابق خریدی۔ پھر اسی روز شام کے قریب عبداللہ اور کاشی کا رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا تھا۔